friends, welcome to my YouTube channel Target Nursing. So now in this video we are going to continue the previous class. So in previous lecture we have studied about ovarian phase of menstrual cycle, and now we have and that time we have completed it, and now in this video we are going to start it from uterine phase. Okay, so before starting the lecture please जल्दी से इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो. So let's start. So friends, let's start the second part of the topic, menstrual cycle. Like I have mentioned it earlier that I tell you earlier that there are two changes. First is ovarian change and the second one is uterine change. ठीक है? So ovarian change we have completed in our previous video, and now we are going to study uterine changes. ठीक है? So as you can see by only the name, what is uterine changes means जो यूट्रस में चेंजेस हो रहे हैं वो चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, सो क्या है इसका जो फेज, इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे 3 फेजेस थे. इसमें थे हमारे, उसमें कौन कौन से फेज थे, फॉलिकुलर, ओव्यूलेटरी फेज एंड थर्ड वन इज ल्यूटरल फेज. इसमें भी हमारे 3 फेज हैं. ठीक है, मेंस्ट्रुअल फेज है इसमें, एक हमारा एक प्रोलिफरेटिव फेज है और एक हमारा सिक्रेटरी फेज है. ठीक है, तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी मेंस्ट्रुअल फेज. ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल फेज नाम से पता चल रहा है कि इस फेज में क्या हो रहा है कि मेंस्ट्रुएशन हो रहा है. ठीक है, ब्लीडिंग हो रही है. तो इस मेंस्ट्रुअल फेज को हम क्या कहते हैं, कैटामेनिया. ओके, ब्लीडिंग फेज, मेंसेस पीरियड. ठीक है, तो ये जो 3 नाम है, ठीक है, these 3 names are very important as I have tell you earlier that sometimes in question papers the teachers or maybe the viva जो examiners जो होते हैं they can ask you that what is the second name of menstrual phase, or they can ask you that what is catamenia. So that time you don't have to, like, you don't know anything about it, because if you know the menstrual cycle you have to know the second name of these things. ठीक है, so you have to clear that the menstrual phase is also known as catamenia and bleeding phase and menses periods. ठीक है, तो ये सेकेंड नेम्स जो है ये आपको अच्छे से याद होने चाहिए हर किसी के. ठीक है, और देखो मेंस्ट्रुअल फेज, जैसे मैंने आपको बताया कि मेंस्ट्रुअल फेज में क्या हो रहा है कि मेंसेस हो रहे हैं. ठीक है, ब्लीडिंग फेज है. तो as you all know that the menstrual phase is for 1 to 7 days, up to 7 days तक menstrual period जो होती है वो हो सकती है. ठीक है, तो 1 to 5 days हम नॉर्मली लेते हैं, लेकिन up to 7 days तक जो menstrual phase है वो रहता है. ठीक है, मीन्स अ ब्लीडिंग फेज, यहाँ पे कोई ब्लीडिंग हो रही है. ठीक है, तो दिस इज menstrual phase. ठीक है, क्लियर है. उसके बाद आता है हमारा फर्टिलाइजेशन नॉट अकर. ठीक है, तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमें क्या पढ़ना है, सिर्फ नॉट अकर पढ़ना है, बिकॉज अगर अकर हो रहा है तो उसमें तो मेंस्ट्रुअल फेज होगी ही नहीं, तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे कैसे. ठीक है, तो वी हैव टू स्टडी इफ फर्टिलाइजेशन नॉट अकर. ठीक है, देन ओनली वी कैन स्टडी अबाउट द मेंस्ट्रुअल साइकिल. ठीक है, तो फर्स्ट, if fertilization not occur, as I have told you before, that the corpus luteum, what is corpus luteum? Corpus luteum is made up by the remaining product of ruptured graphene follicle. ठीक है, it is corpus luteum as we have seen it earlier, it is a yellow color body. ठीक है, and then क्या होता है कि if not fertilized then corpus luteum disappears at 26 to 28 days. ठीक है, we all know that if fertilization not occur, we have studied already in previous video that if fertilization is not occur then the corpus luteum will be disappear. ठीक है, जो corpus luteum होगा वो हमारा disappear हो जाएगा 26 to 28 days में. ठीक है, उससे क्या होगा, that corpus luteum is responsible for producing progesterone and estrogen, but now there is no corpus luteum, so there will be no progesterone and low estrogen. No means there is low level of progesterone and low level of estrogen. ठीक है, that causes, what causes, decreased level of progesterone and decreased level of estrogen cause vasoconstrictions. ठीक है, so what is vasoconstriction? से आपको पता है कि vasoconstrictions क्या होता है, जब हमारी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शंस होने लग जाते हैं. ठीक है, कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं, जब वो नैरो हो जाएंगी वो. ठीक है, और ये किस वजह से हो रहा है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन. और प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का लेवल क्यों डिक्रीज हो रहा है, बिकॉज देयर इज
corpus luteum disappeared because there is no fertilization here, ठीक है। तो वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा हमारी ब्लड वेसल्स में। उसके बाद क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा हमारी ब्लड वेसल्स में, तो हमारी जो यूटेराइन आर्टरी है, जो हमारे यूट्रस को ब्लड सप्लाई करती है, उसका भी वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी, ठीक है, उसका भी कंट्रिक्शन हो जाएगा, वो भी कंस्ट्रिक्ट हो जाएगी क्योंकि वेजो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है। अब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगा जैसे कि नॉर्मली हमारी जो वेसल है वो इतनी है, बट अभी हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो चुका है, जिसकी वजह से हमारी जो आर्टरी है वो इतनी हो चुकी है, ठीक है। तो पहले तो ब्लड फ्लो एकदम सही हो रहा था, ब्लड के पास रास्ता था जाने का, ठीक है, यहाँ से भी जा सकता था, यहाँ से भी जा सकता था, जाने के लिए अच्छा रास्ता था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पर वो नैरो हो गया, तो उसके पास रास्ता भी नहीं है, ठीक है। तो जो, और ये मान लो ये हमारा यूट्रस था, ये हमारी ब्लड वेसल्स थी, ठीक है। तो अभी यूट्रस पे क्या हो रहा है कि ब्लड सप्लाई जा ही नहीं पा रही है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रिक्शंस इन यूटेराइन आर्टरी, तो वहां पे को क्या होने लग जाएगा, इस्चीमिया। इस्चीमिया इज ऑल्सो नोन एज लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है, ऑल्सो नोन एज नहीं, मतलब इस्चीमिया क्या होता है, इट इज अ लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो क्यों हो रही है ब्लड सप्लाई, क्योंकि वैसो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, आपको अच्छे से ब्लड नहीं जा पा रहा है, ठीक है। उसके बाद इस्चीमिया होगा, जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो O2 की जो लेवल है वो भी डिक्रीज होने लग जाएगा यूट्रस में, ठीक है। तो जो यूट्रस है वहाँ आपको हाइपोक्सिया होने लग जाएगा। हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जिसके वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन नहीं होगी तो जो वहाँ की जो सेल्स होंगी, हमारी एंडोमेट्रियम की जो सेल होंगी, उनकी डेथ होने लग जाएगी, ठीक है। डेथ ऑफ एंडोमेट्रियम से, एंडोमेट्रियम की जो सेल है हमारी, उनकी डेथ होने लग जाएगी, ठीक है। डेथ होगी तो अब क्या होगा, डेथ हो गई तो वो डेड सेल्स हो जाएंगी, वहां पर वो डेड सेल्स हो जाएंगी, तो उनका नेक्रोसिस होने लग जाएगा, ठीक है। नेक्रोसिस होने लग जाएगा तो जो हमारी एंडोमेट्रियम सेल है हमारी, वो शेड आउट होने लग जाएगी, जैसे कि हमको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि शेडिंग ऑफ एंडोमेट्रियम वॉल, ठीक है, तो शेड आउट होने लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि मान लो जैसे हमारा ये यूट्रस है, ठीक है, ये हमारा यूट्रस है, इतना क्लियरली नहीं बना पाऊंगी लेकिन जस्ट जो नो आपको बताने के लिए मैं इसको अच्छे से बना देती हूँ ऐसे, ठीक है। तो देखो क्या है कि यहाँ पर को हमारी एंडोमेट्रियम जो थी वो इनर लेयर थी, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर को नेक्रोसिस हो गया, O2 नहीं जा रही है, वहाँ पर ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, जिसकी वजह से O2 नहीं जा पा रही है, O2 नहीं जा पा रही है, तो वहाँ पर को जो सेल है वो डेड हो चुके हैं, वहाँ पे नेक्रोसिस हो गया है। अब जो ये एंडोमेट्रियम वॉल है, ठीक है, यहाँ पर ऐसे ब्लड सप्लाई हो रही थी, अब ये एंडोमेट्रियम सेल्स हैं, ये नीचे आ गई, गिरने लगी, ठीक है, शट आउट होने लगी है ऐसे ऐसे। तो जो ये ब्लड वेसल्स हैं जो एंडोमेट्रियम को सप्लाई कर रही थी, उनकी ओपनिंग हो जाएगी, ठीक है, ओपनिंग हो जाएगी ऐसे, ठीक है। अब जो ब्लड वेसल्स है उनकी ऐसे ऐसे ओपनिंग हो जाएगी, कि एंडोमेट्रियम तो यहाँ पर रही नहीं, वो तो शेड आउट हो गई, ठीक है, ओपनिंग हो जाएगी, ओपनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, तो क्या होने लग जाएगा, ब्लीडिंग होने लग जाएगी हमारे यूट्रस से, ठीक है, ब्लीडिंग होने लग जाएगी यूट्रस से। सो ब्लड एंड डेड सेल्स ऑफ द एंडोमेट्रियम वॉल कलेक्ट्स इन द यूट्रस, ठीक है, और जो ब्लड होगा और जो डेड सेल्स होंगे हमारे यूट्रस में कलेक्ट होने लग जाएगी। उसकी वजह से कलेक्ट जैसे ही होंगी तो हमारी जो नर्व सप्लाई होगी यूट्रस में, क्योंकि वहाँ पर बहुत कलेक्शन हो चुका है, अभी जो नर्व सप्लाई होगी वो क्या करेगी, स्टिमुलेट होने लग जाएगी, ठीक है। स्टिमुलेट होगी तो वो क्या करेगी, मैसेज ट्रांसफर करेगी हमारे हाइपोथैलेमस को, यहाँ पर को बहुत सारे ब्लड हैं, बहुत सारे डेड सेल्स हैं एंडोमेट्रियम वॉल पे, वी हैव टू टेक इट आउट, ठीक है। तो वो स्टिमुलेट करेगी हाइपोथैलेमस को, मैसेज ट्रांसफर करेगी कि यहाँ पर को ब्लड सेल्स हैं, डेड सेल्स हैं, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को बोलेगा, ठीक है, हाइपोथैलेमस क्या करेगा, पोस्टीरियर बोलेगा नहीं, आई वाज जस्ट wanted to tell you that कि मैं आपको समझाने के पर्पज से बता रही हूँ। और हाइपोथैलेमस क्या करेगा, ये स्टिमुलेट करेगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, और वहां से पोस्टीरियर पिट्यूटरी क्या करेगी, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी, ठीक है, ऑक्सीटोसिन रिलीज करेगी। उसके बाद क्या होगा कि वो मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा, ठीक है, जैसे ऑक्सीटोसिन सीक्रेट करेगी मायोमेट्रियम ऑफ यूट्रस पे वो एक्ट करेगा, और वो जो ऑक्सीटोसिन होता है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है। तो जैसे वो मायोमेट्रियम पे एक्ट करेगा तो हमारे वहाँ पे यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन होने लग जाएंगे। अब जैसे जो जितना भी हमारे वहाँ पे ब्लड सेल्स वगैरह थी बची हुई, ठीक है, ब्लड था और डेड सेल्स थी, वो कॉन्ट्रैक्शन होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, वो सब आउटफ्लो हो जाएंगे विजाइना के थ्रू, ठीक है। तो वो क्या होगा, हमारी मेंसेस होगी, वो ब्लीडिंग होगी, ठीक है। तो ये हमने मेंस्ट्रुअल जो फेज था ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले क्या होगा कि कॉर्पस ल्यूटेम डिसअपेयर हो गया 26 to 28 डेज में, जिसकी वजह से हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन का लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो ब्लड वेसल्स है उनमें कंस्ट्रिक्शन हो गए, उसकी वजह से यूटेराइन आर्टरी में भी कॉन्ट्रैक्शन हो गया। यूटेराइन आर्टरी में कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो ब्लड सप्लाई नहीं हो पाई अच्छे से,
यूट्रस में, जिसकी वजह से वहाँ पे हाइपोक्सिया हो गया, O2 की जो लेवल है वो डिक्रीज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे जो सेल है उनकी डेथ हो चुकी है, अब उनका नेक्रोसिस हो गया है, और एंडोमेट्रियम शेल जो है वो डिक्रीज आउट हो गई है, उसकी वजह से डिक्रीज शेड आउट हो गई है, जिसकी वजह से हमारी ब्लड वेसल्स जो थी अराउंड द यूट्रस वो खुल गई हैं और ब्लीडिंग होने लग गई है यूट्रस से। अब वहाँ पे को ब्लड और डेड सेल्स जो है वो कलेक्ट हो गई है एंडोमेट्रियम वॉल पे, जिसकी वजह से जो नर्व सप्लाई है वो स्टिमुलेट होगी और मैसेज ट्रांसफर करेगी हाइपोथैलेमस को कि स्टिमुलेट करो पोस्टीरियर पिट्यूटरी को, ताकि वो क्या करे, ऑक्सीटोसिन रिलीज करे, और जिसकी वजह से हमारे कंस्ट्रक्शन और यूट्राइन कंस्ट्रक्शन और हमारा जो ब्लड और जो भी डेड सेल्स हैं हमारी वो आउटफ्लो हो जाए वेजाइना से और मेंसेस हो जाए। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब आता है एट द एंड ऑफ द फेज, दिस मेंस्ट्रुअल फेज के एंड में थिकनेस कितनी हो जाती है एंडोमेट्रियम वॉल की। जैसे मैं पढ़ा कि एंडोमेट्रियम वॉल क्या हो रही है, शेड आउट हो रही है। ठीक है, तो ऑब्वियसली उसकी जो थिकनेस है वो क्या हो रही है, कम हो जाएगी। ठीक है, इस फेज में, ओनली इस फेज में, मेंस्ट्रुअल फेज में। ठीक है, नॉर्मली उसकी थिकनेस कितनी होती है, 10 mm होती है, मतलब कि 1 सेंटीमीटर तक उसकी थिकनेस होती है। बट एंडोमेट्रियम में क्या हो जाए, जब हमारा मेंस्ट्रुअल फेज होगा, ठीक है, जब हमारे मेंसेस होंगे तो उस टाइम पे उसकी थिकनेस कितनी हो जाएगी, 1 to 2 mm हो जाएगी। और यही अगर प्रेगनेंसी के केस में होगा तो ये हम लोग उसकी थिकनेस बढ़ जाएगी, बट अभी मेंस्ट्रुअल के फेज में है तो 1 to 2 mm हो जाएगी, उसकी जो थिकनेस है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और नॉर्मली 10 mm होती है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी याद रखना है, ये हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना आप। ठीक, उसके बाद हमारा वो था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज। अब सेकंड वन आता है हमारा प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज को हम और क्या कहते हैं, डिवीजन फेज भी कहते हैं। ठीक है, तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल फेज था वो हमारा 1 to 5 डेज या अप टू 7 डेज तक था। ठीक है, अब जो ये वाला फेज है हमारा, इसके आगे वाला फेज है प्रोलिफरेटिव फेज है। ठीक है, 6 to 14 डेज। ठीक है, 6 to 14 डेज का जो फेज है वो प्रोलिफरेटिव फेज है। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है ओवेरियन फेज और यूटेराइन फेजेस में, कि आप बोलोगे कि 1 to 14 डेज वाला फेज तो वो वाला था जो हमने ओवेरी में पढ़ा था। ऐसा नहीं है, ओवेरी की साइकिल चलती रहेगी और यूट्रस की साइकिल अलग चलती रहेगी। ठीक है, जैसे ही वहां पर को एंडोमेट्रियम वॉल जो होगी शेड आउट हो जाएगी, मेंसेस हो जाएंगे, वहां पर को फिर से ओवेरी में फॉलिकुलर फेज आने लग जाएगा कि वो डेवलप होने लग जाएंगे। फिर उसके बाद उसमें क्या कहते हैं, ओव्यूलेशन फेज आने लग जाएगा, ल्यूटल फेज आने लग जाएगा। तो वो ओवेरीज की जो साइकिल है वो वहां चलती रहेगी और यूट्रस की जो साइकिल है वो यहाँ चलती रहेंगी। दोनों को रिलेट नहीं करना है। ठीक है, दोनों का रिलेशन है लेकिन उन्हें रिलेट नहीं करना है। बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमने तो पहले पढ़ा कि 1 to 14 डेज वाली साइकिल तो हमारी भाई वो वाली साइकिल थी जो हमने उसमें पढ़ी, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ये जो हमारा ये यूट्रस में चल रहा है और जो वो है वो हमारा ओवेरीज में चल रहा है। ठीक है, तो ये जो है हमारी प्रोलिफरेटिव फेज वाली, ये हमारी कौन सी फेज, कौन सी किसके बाद आती है, हमारी मेंसेस वाले के बाद आती है, मतलब कि ब्लीडिंग फेज के बाद आती है। मेंस्ट्रुअल फेज के बाद 6 to 14 डेज वाली जो साइकिल होती है उसे हम प्रोलिफरेटिव फेज कहते हैं इन यूटेराइन चेंजेस। ओवेरियन वाली अलग है। ठीक है, वो ओवेरीज में चलती रहेगी और वहां से जैसे ब्लड फ्लो होगा वहां से हमारा फिर से ग्राफिन फॉलिकल मैच्योर होकर ओवम रिलीज करेगा, कॉर्पस ल्यूटेम डिवीजन, फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट। दैट्स व्हाई इट इज अ साइकिल ना, कि एक चीज खत्म हो रही है दूसरी चीज स्टार्ट हो रही है। ठीक है, इसीलिए हमें इसे साइकिल बोला है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, ठीक है, तो प्रोलिफरेटिव फेज हो गया। उसके बाद आता है 6 to 14 डेज की। उसके बाद इसमें क्या होता है कि प्रोलिफरेटिव फेज है तो इसमें क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ न्यू एंडोमेट्रियम लेयर। अब इसमें क्या हो गया, शेड आउट हो गई भाई हमारी जो वाली लेयर जो थी। ठीक है, जो हमारी मेंसेस में शेड आउट हुई, पतली हुई बेचारी, 2 mm की हो गई थी और फिर शेड आउट हो गई। ठीक है, लेकिन अब मेंस्ट्रुअल फेज तो चले गया, मेंसेस कंप्लीट हो गए। अब 6 से 14 डेज या 7 से 14 डेज तक क्या होगा, फिर से एंडोमेट्रियम लेयर फॉर्मेशन होगी। कैसे, जब ओवेरीज में हमारी साइकिल चल रही है, जब ओवेरीज का जो फेज है हमारा फॉलिकुलर फेज, ओव्यूलेशन फेज, लूटियल फेज कंप्लीट हो रहा है, फिर से हमारी एंडोमेट्रियम लूटियल फेज में फिर से हमारी एंडोमेट्रियम जो लेयर है वो डेवलप हो रही है, फॉर्मेशन हो रहा है उसका। ठीक है, उससे क्या होगा कि यहाँ पे को इंक्रीज नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल। अब डेवलपमेंट कैसे होगा, बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल, मतलब कि हाइपरप्लेजिया होगा। ठीक है, हाइपरप्लेजिया में क्या होता है, सेल नंबर इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, हाइपरट्रॉफी में सेल साइज। ठीक है, हाइपरप्लेजिया होगा, सेल नंबर इंक्रीज हो जाएंगे। किस वजह से हो रहा है, ड्यू टू एस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज बाय द मैच्योर ग्राफिन फॉलिकल इन फॉलिकुलर फेज। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि रिलेट करो, मतलब ऐसे नहीं कि ऐसा रिलेट करो कि वहां भी 1 to 14 डेज में जो था हमारा वो वाला फॉलिकुलर फेज चल रहा था। ठीक है, अभी हमारा
proliferative फेज चल रहा है, ऐसे रिलेट नहीं करना है, ऐसे रिलेट करना है कि अभी जो था हमारी मेंसेस कंप्लीट हो गई, ठीक है। तो सेकंड टाइम पे न्यू एंडोमेट्रियम लेयर कैसे फॉर्मेशन होगी, जब हमारा वो वाली साइकिल में, कहाँ, हमारा वो ल्यूटिल वाली साइकिल में, या फिर जो हमारा फॉलिकुलर वाली साइकिल थी वहां पर जो हमारा मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल्स है वो अभी डेवलप हो रहा है। इसका मतलब एस्ट्रोजन का लेवल वहां पर को हाई हो रहा है, ठीक है। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन, क्योंकि वहां पर को हमारा क्या था, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो रहा है, उसकी वजह से हमारा इंक्रीज ऑन नंबर ऑफ एंडोमेट्रियम सेल्स हो रही है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज से रिलेट करना है इसे, ठीक है। अगेन मैं कह रही हूँ कि ऐसे रिलेट नहीं करना कि 1 to 14 डेज वाली साइकिल वो थी, वो इसीलिए थी क्योंकि वहां पर भी वो साइकिल चल रही है और यहाँ पर भी वो साइकिल चल रही है, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस फेज द थिकनेस ऑफ द एंडोमेट्रियम विल बी 3 to 4 मीटर mm। अब हमने पढ़ा कि वहां पर को क्या है कि जो मेंस्ट्रुअल फेज था वहां पर को हमारी थिकनेस जो थी वो काफी कम हो चुकी थी, 2 mm हो चुकी थी, ठीक है। 2 mm हो चुकी थी 10 mm से, लेकिन अब यहाँ प्रोलिफरेटिव फेज में फिर से डेवलप हो रही है, तो अभी उसकी जो लेंथ होगी उतनी तो नहीं हो पाएगी, लेकिन अभी जो उसकी थिकनेस होगी वो 3 to 4 mm हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा सिक्रेटरी फेज, जिसे हम प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं, ठीक है। थर्ड फेज है इसमें सिक्रेटरी फेज, वैसे प्रिपरेटरी फेज भी कहते हैं। ये जो है ये हमारे किसके बाद आएगी, प्रोलिफरेटिव फेज के बाद 15 to 28 डेज की साइकिल होगी आफ्टर ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन के बाद वाली जो साइकिल होगी, ठीक है। इसे प्रिपरेटरी फेज कहेंगे। इसमें क्या होता है कि सिक्रेटरी एक्टिविटी ऑफ कॉर्पस्यूटम, अभी हमारा कॉर्पस्यूटम फॉर्मेशन हो चुका है, ल्यूटिल फेज आ चुका है, ठीक है। कॉर्पस्यूटम का फॉर्मेशन हो गया है, तो वो क्या करेगा, हमारा प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट करेगा, ठीक है। प्रोजेस्टेरॉन सिक्रेट करेगा और उसकी वजह से क्या होगा, एंडोमेट्रियम सेल की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, ठीक है। हाइपरट्रॉफी हो जाएगी जिसकी वजह से जो एंडोमेट्रियम लेयर है उसकी थिकनिंग हो जाएगी। ये खाली प्रिपरेटरी फेज है, ठीक है। तो अभी ये नहीं कहना है कि कॉर्पस ल्यूटियम जो था यहाँ पर डेवलप हो गया, लेकिन वो तो डिजेनरेट हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल में, ऐसे नहीं। अभी तो वो जब तक क्या कहते हैं, जब तक उसका ओव्यूलेशन नहीं होगा, जब तक उसको स्पर्म नहीं मिलेगा, तब तक तो फर्टिलाइज होगा नहीं ना, तो तब तक वो क्या करेगा, तब तक वो प्रिपरेशन करेगा कि ठीक है, मतलब उसका जो हम एंडोमेट्रियम में वो उसको थिकन कर देगा, किसके लिए, फिटस के डेवलपमेंट के लिए। बट क्या होगा, जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, जब उसे स्पर्म नहीं मिलेगा फर्टिलाइज होने के लिए, तब जो कॉर्पस लूटियम है वो डिजेनरेट हो जाएगा और वो क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन का लेवल भी डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से फिर से जो सारी तैयारियां करी थी, जितनी प्रिपरेटरी फेज और जितने भी हमारा ये जो हमारा प्रोलिफरेटिव फेज था, फिर से ये सब मेंस्ट्रुअल फेज में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रिपरेशन का कोई फायदा नहीं रहेगा, ठीक है, जितनी वो प्रिपरेशन करेगी, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होना है नहीं, ठीक है। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बहुत बहुत क्लियर है, बहुत क्लियर। अभी मैं आपको एक मेंस्ट्रुअल साइकिल के डायग्राम से समझा दूंगी, कंफ्यूज नहीं होना है, अच्छे से फ्लो चार्ट बना के पढ़ना है और सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। एट द एंड ऑफ दिस फेज, क्योंकि क्या हो रहा है कि आपको फिर से थिकनिंग हो गई एंडोमेट्रियम लेयर की, अभी उसने पूरी प्रिपरेशन कर लिया कि फिटस आएगा, भाई फिटस को हम रखेंगे अंदर से अच्छे से, बट उसे नहीं पता कि फर्टिलाइजेशन होने ही वाला नहीं है, ठीक है। तो एट द एंड ऑफ दिस फेज क्या हो जाएगा, कंप्लीटली रीस्टोर हो जाएगी हमारी जो एंडोमेट्रियम है, उसका साइज हो जाएगा 8 to 10 mm, जो उसका नॉर्मल साइज होता है, ठीक है, इस वाले फेज में, ठीक है। उसके बाद आता है, देखो अब मैं आपको बताती हूँ इस चार्ट के थ्रू, ठीक है। जो भी हमने ओवेरियन फेज ये हमारी यूट्राइन फेज कंप्लीट हो गया, ठीक है। यहाँ पर 3 फेजेस कंप्लीट हो गए हैं इसके, क्या कहते हैं, सबसे पहला था हमारा मेंस्ट्रुअल फेज, ठीक है, जिसमें मेंसेस थी। प्रोलिफरेटिव फेज में जिसमें वो एंडोमेट्रियम सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, नंबर इंक्रीज हो रहा है और उसकी तो थिकनेस जो है तो वो भी थोड़ी इंप्रूव हो रही है। उसके बाद सिक्रेटरी फेज में जो है वो नॉर्मली रिस्टोर हो जाती है हमारी एंडोमेट्रियम, ठीक है। अब देखो यहाँ पर को ये है चार्ट, ठीक है। इसमें ये देखो यहाँ चल रही है हमारी यूटेराइन साइकिल, अब रिलेट करना, ठीक है, अब देखना। और ये है हमारी ओवेरियन साइकिल, ठीक। ये है डे 0 to 14 डेज, 14 to 28 डेज की साइकिल होगी, ठीक है। तो यूटेराइन हमने पहले ओवेरियन साइकिल पढ़ी, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, हमारा प्राइमरी oocyte था, ये हमारा मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल में कन्वर्ट होगा, ठीक है। ग्राफिन फॉलिकल बन रहा है, फिर मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बनना है, ये देखो इसके अंदर ओवम है, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। तो 0 to 14 डेज वाली जो साइकिल थी हमारी, ठीक है, जो हमने ओवेरियन साइकिल पढ़ी थी, ओवेरियन साइकिल में हमने क्या पढ़ा था कि 1 to 14 डेज वाली हमारी फॉलिकुलर साइकिल थी, फॉलिकुलर फेज था। तो 1 to 14 से देखो यहाँ से, यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 to 14 डेज में हमारा फॉलिकुलर फेज चल रहा है ना, ऊपर ओवेरियन साइकिल में देखो फॉलिकुलर फेज चल रहा है कि ग्राफिन फॉलिकल हमारे मेच्योर हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ओवुलेटरी फेज आता है हमारा 14 डेज में, ये देखो 14 डेज यहाँ पर है, और ओवेरी वाली साइकिल देखो यहाँ पे ओवुलेशन हो गया, ओवुलेटरी फेज आ गया, ठीक।
अब हमारा 14 to 28 डेज वाला जो पीरियड होता है वो होता है हमारा 15 to 28 डेज वाला जो पीरियड होता है वो होता है हमारा ल्यूटियल फेज। यहाँ से हमारा ल्यूटियम फेज स्टार्ट हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम आया, कॉर्पस एल्बिकम में कन्वर्ट हो गया जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो। ठीक, ये हमारी ओवेरियन साइकिल कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद आता है हमारे यूटेराइन साइकिल। देखो यहाँ पर अब जो यूटेराइन साइकिल थी हमारी, उसमें क्या था, 0 to 5 डेज या फिर 7 डेज, अप टू 7 डेज तक ले लो तो हमारी मेंसेस साइकिल थी। ठीक है, 1 to 5 डेज तक। तो यहाँ पे देखो मेंसेस चल रही है ना, एंडोमेट्रियम वॉल शेड आउट हो रही है। ठीक है, ये चल रही है। उसके बाद हमारा 6 to 14 डेज। ठीक है, जो 6 to 14 डेज वाली जो साइकिल है हमारी, वो है प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, प्रोलिफरेटिव फेज में हमारे फिर से डेवलपमेंट हो रहा है। देखो यूट्रस की फिर से लेयर बन रही है। ठीक है, और 28 डेज में वो पूरी मतलब कि जो इसमें यहाँ पर देखो जो हमारा वो है सिक्रेटरी फेज है। ठीक है, यहाँ पर को पूरा अच्छे से रिस्टोर हो जा रही है, फिर से यही साइकिल आ जा रही है मेंसेस वाली। ठीक, ये तो हमारा ओवेरियन साइकिल और यूटेराइन साइकिल हो गया। अब मैं आपको बताती हूँ कि इसके हॉर्मोन्स। ठीक है, सबने पढ़ा। अभी यहाँ पर को क्या है, देखो एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन जो है हमारा। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी हार्मोन हमारा एफएसएच और एलएच है। ठीक है, तो यहाँ पर को क्या होगा कि जब ओव्यूलेशन होता है तो हमने बताया था कि एलएच और एफएसएच रिलीज होते हैं। यहाँ पर को एलएच का अमाउंट बहुत हाई होता है जिसकी वजह से ओव्यूलेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये ब्लू लाइन जो है ये एलएच को शो कर रही है और ये कितने पीक में है, कितना पीक है ना इसका, तो इसकी वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है। ठीक है, और फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन भी है, वो भी उतना पीक नहीं है लेकिन वो भी है। ठीक है, और ये इसका जो लेवल होगा वो यहाँ पर इंक्रीज है। देखो ग्रीन वाली का एफएसएच का यहाँ पर इंक्रीज है, क्योंकि क्या कर रहा है यहाँ पर को ग्रेफिन फॉलिकल्स को मैच्योर करा रहा है एफएसएच। ठीक है, इस वजह से यहाँ पर इंक्रीज है, और यहाँ पर एलएच की वजह से ओव्यूलेशन हो रहा है, इसकी वजह से वो यहाँ पर इंक्रीज है। ठीक है, अब आता है हमारा ओवेरियन हार्मोन। ठीक है, तो जो ओवेरियन हार्मोन होता है हमारा, ठीक है, तो जो ओवेरियन हार्मोन होता है हमारा नॉर्मली वो जो होता है हमारे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को देखो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोडाइल लिखा है। तो एस्ट्रोडाइल क्या होता है, ये भी एक मतलब कि एस्ट्रोडाइल और एक एस्ट्रॉयल जो होता है, ये टू फॉर्म्स होते हैं हमारे फीमेल हॉर्मोन्स के। ठीक है, एस्ट्रोडाइल को कहते हैं हम ई टू कहते हैं हम इसको ई टू। ठीक है, और जो हमारा एस्ट्रियोल होता है उसे हम ई3 कहते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं ना एस्ट्रोजन, मतलब इसी के टाइप्स होते हैं। ठीक है, और ये ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या है, अब जैसे हमारा जो हमारा ओव्यूलेशन फेज था उस टाइम पे हमारा एस्ट्रोजन का लेवल काफी हाई चले जाता है। देखो ये, ठीक है, पढ़ाया था मैंने। और जब हमारा क्या हो रहा है, जब हमारा कौन सा फेज चल रहा है ओवेरियन हार्मोन में, जब हमारा ये ल्यूटिल फेज हो गया और यूट्राइन साइकिल में हमारा कौन सा फेज चल रहा है, जो हमारा प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज चल रहा है, उस टाइम में हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर को क्या कर रहे हैं, एंडोमेट्रियम वॉल है जो उसकी प्रिपरेशन कर रहा है। ठीक है, बट जब हमारा क्या होगा, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा तो वो फिर से शेड आउट हो जाएगी। ये साइकिल यहाँ पर फिर से रिपीट हो रही है। देखो दैट्स व्हाई इट इज अ साइकिल ना, ये रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है, फिर रिपीट हो रही है, साइकिल बन रहा है। ठीक है, तो ये क्लियर बहुत ही सिंपल तरीके से दिया हुआ है, इसमें बहुत अच्छा दिया हुआ है। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी में एलएच है, इसकी वजह से ओवुलेशन हो रहा है, एफएसएच यहाँ पर इंक्रीज होगा, ये ग्रेफिन फॉलिकल को मैच्योर करेगा, एस्ट्रोजन की वजह से ही यहाँ पर एस्ट्रोजन का लेवल भी यहाँ पर हाई होगा ओवुलेशन पे, और प्रोजेस्टेरोन का लेवल यहाँ पर हाई होगा जब हमारा ल्यूटियल फेज चल रही होगी, या फिर जब हमारी यूटेराइन में प्रोलिफरेटिव और सिक्रेटरी फेज चल रही होगी। ठीक है, और यहाँ पर को हमारा 0 to 14 डेज, 14 to 28 डेज की पूरी साइकिल बना रखी है। और ये बॉडी टेम्परेचर है, बॉडी टेम्परेचर का वही है कि जब हमारा ओवुलेशन होता है तो हमारा बॉडी टेम्परेचर थोड़ा हाई हो जाता है। ठीक है, इसको थैंक यू फ्रेंड, दिस इज फॉर ऑल टुडे। पार्ट 4 means the last part of this lecture will be in next video, and then let me tell you again that we are going to provide you the PDF, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि हम PDF आपको देंगे और उसका जो लिंक है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। तो मुझे इस वीडियो का फीडबैक देना ना भूले कमेंट बॉक्स में, एंड यस डोंट फॉरगेट टू like, subscribe and share the video. Thank you.